Right, Assalamu alaikum and welcome to the um, welcome to the 10th lecture of mathematics for machine learning. कल हमने क्या डिस्कस किया है mainly vector space, right? So very quick look into what did we define a vector space as? क्या था? Simple. सब स्पेस तो बाद में आएगी ना. राइट पर दो ऑपरेटर्स भी चाहिए थे, राइट? सो क्या थे? एडिशन which was the inner operator and multiplication with a scalar which was an outer operation, right? So it was a set with a set and a set, right? So then we saw this whole thing, its formal definition, and we saw that this is basically vector spaces where linear algebra lives with some rules. Yeah, then we just went through several examples of that. More interestingly, we saw that vector spaces are not limited to vectors. उसी तरह किसी और भी set of objects, mathematical objects पे अगर वही rules apply होते हैं तो that object also qualifies as a vector space. Yeah. So we saw this example and some others. Then we went on to vector subspace. Yeah. ये क्या था? Within which उसकी एक subset है which has to be non-empty, right? Within the boundaries of which all the rules of a space also hold, right? Now कुछ rules तो उसके अंदर violate हो ही नहीं सकते क्योंकि they are part of the space, so they cannot like additive inverse या overall तो exist करेगा उसके हर element का, right? Within V, but the additive inverse may not be within U itself, वो खुद क्लोज शायद ना हो, राइट? सो अगर वो रूल्स उसके ऊपर भी उसी तरह अप्लाई हो जाते हैं ऑल ऑफ देम, देन वी से दैट इट इज़ ए subspace, right? Otherwise it's not a subspace, doesn't qualify. And we saw, okay, we had to only show these three things, or maybe four. You can say U is not empty, 0 is in U, because subset तो आप किसी तरह भी बना सकते हैं ना, होता है आप ज़ीरो एलिमेंट को मिस कर दें, या हो सकता है आप ऐसे बनाएं कि हर एक उनमें से किसी एक का या कईयों का जो नेगेटिव एलिमेंट है, इन्वर्स एलिमेंट है, वो हो ही ना अंदर, राइट? तो ठीक है, वो सबसे वो उसका सबसेट तो है पर सब स्पेस नहीं है, ठीक? सो as I mentioned, we also saw why we were interested in subspaces. It's all about solution spaces, basically working with solution spaces, ठीक है? A lot of what we will do in machine learning, especially the conventional machine learning, will be about finding the subspaces. कहाँ पे कौन सी subspace है solutions की which is more suitable for us? Yeah, how can we change one solution into another? What does change of one solution set tell me about the other? सारा कुछ ये discussions हमारी उसमें होंगी. Yeah. So we saw this one also, and then we saw some examples. In general, origin अंदर नहीं है, zero element इस subset में अगर नहीं है तो subspace का idea उसमें ख़त्म हो जाता है, right? Okay, so we saw all of this, but then we came to this guy, basis, right? Which is, as I said, probably the most important concept there is, and we started by making a general sense of basis. Yeah. What I like is for my students to have an intuitive understanding of something before we give the formal terms. Yeah. So आपने देखा हमने जब linear independence, inconsistent system, consistent system ये सब करें तो we started with very simple points, single 4x equals y, right? This is where it should start, so that you comfortably develop the whole idea. सारी terms आप बड़े आसान अल्फाज में देख लेते हैं, then we define them and then we take them to higher space, फिर easy हो जाता है, right? So we're going to follow similar things in almost everything we do. Okay, so we said, okay, we actually already know a basis idea,
which also works on linear combination of bases, which is the Fourier transform, and we saw this Fourier cake thing, and this is where we were, right? There is a broad set of continuous functions, और उनके अंदर there is a subset of complex sinusoids, right, whose linear combinations can represent all the rest. This is the Fourier approximation. और ये इसका जिक्र पहले कब आया था इस कोर्स में, कल के अलावा कल तो आया ही था. Yes, when we talked about the power of neural networks and machine learning, universal approximation. याद है? There I said that a single layer neural network with one single hidden layer can approximate any continuous function within a range. Yeah, but then we saw so could Taylor series, so could Fourier series, or Fourier जो भी है इसका transform है. So we have already seen this guy, and in your undergrads most of you have, आपने शायद अभी तक नहीं किया होगा चले आइडिया हो गया, बाद में मैथ भी देख लें right. So we saw, okay, there were some interesting properties about it, and I want to emphasize this because यही सारे theorems हैं जो जब हम एक वो गाढ़े से मैथ में लिख देते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा परेशान रहता है, but they make perfect sense, right. It is a minimum subset that can represent the entire set. Minimum किस sense में है ये? इससे हाँ, वो फिर मैक्सिमम का हो जाएगा ना. मिनिमम क्या है कि हम इससे निकाल भी नहीं सकते, निकालेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन इसमें होंगे जो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है. इस सेंस में ही मिनिमम सबसेट है, और मैक्सिमम उस सेंस में है कि इफ़ यू ऐड वन मोर टू दीज दैट इज़ रिडंडेंट, द रेस्ट कैन ऑलरेडी फॉर्म इट, फिर जरूरत क्या थी उसकी. तो ये बड़ा स्वीट सा एक स्पॉट है, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में ये एक है बस. इट इज़ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम, यानी ना इसमें आप डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं इसमें से एलिमेंट, राइट. सो वी सेड ओके, टेक दिस कॉम्प्लेक्स साइनोसॉइड्स, रिमूव देयर स्केल्ड वर्जन्स. ये रिमूव क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि वो जो रिडंडेंसीज हैं वो याद है, हमने इसको क्या लाना है, जो भी मैक्सिमम हमें कितना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना हमने. या सो देन no member of this subset should be able to, or you should not be able to make any member of this subset as a linear combination of the others. अगर आप उसको नहीं बना सकते तो उसकी पोजीशन वहाँ जस्टिफाइड है. अगर दूसरों से वो बन जाता है तो उसकी पोजीशन, उसने निकलना है या किसी और ने निकलना है, जरूरी नहीं उससे निकलना होता है, किसी और को निकाल, लेकिन निकलना है किसी ने. So we said the other way of saying it, that it forms the basis of making the rest of the set. यही है basis बस, या. और then we had, ये जो मैंने बोल्ड में लिखे हैं ये लफ्ज़ बार बार आएंगे, फिर आएगा जी ये span of the columns of a matrix, या generating set from a matrix, वो बार बार आएगा. तो अगर अभी आपको ये काफ़ी क्लियरली समझ आ जाए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, या this will show up again and again. So we can say that this minimal set spans, इसका फैलाव, या वो अमजद इस्लाम, अमजद जैसे कोई भी लेता था ना ऑटोग्राफ, तो वो लिखते हैं जो कुछ है मोहब्बत का फैलाव है ठीक है. अब पता नहीं आजकल लिखते हैं, पहले ऐसे ही लिखते थे. सो ये जो बाकी सब कुछ है ना वो बेसिस का स्पैन है, उन्हीं का फैलाव है ये ठीक है, द रेस्ट ऑफ द फंक्शन. या सो अब आपको मोहब्बत वाली बात याद रह जाएगी, ये आपने भूल जाना है, लेकिन 12 ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, राइट. सो वी वर समवेयर हियर, राइट, कि भाई अच्छा ठीक है, अब फ़ायदा क्या बेसिस का. वेक्टर स्पेसिस की हमने बात की, वेक्टर सब स्पेसिस की बात की, या दोज थिंग्स जो मैंने वहाँ मेंशन की हैं दे स्टिल होल्ड हियर. सोल्यूशन सेट्स की बात हो रही है, वो सारी वो इन्हीं की मदद से हमने करना है, राइट. सो बट पर्टिकुलरली बेसिस का क्या फ़ायदा. ये पावर ऑफ बेसिस याद है, पहले डिस्कस हुआ है व्हेन वी डिस्कस द पावर ऑफ मशीन लर्निंग. वहाँ भी हमने काफ़ी थोड़ा जेनेरिक अंदाज में डिस्कस किया था, या. सो we're going to look at it again, and there are many things that make basis very very useful. Yeah, basis फिर किसकी होंगी इन जनरल, हमारे केस में किसी सेट की होंगी.
Yeah, हमारे केस में actually will be interested in basis of vector space and vector subspace, right? लेकिन it's not limited. जैसे मैं जो Fourier का दिखाया आपको, it's a general set of functions. Yeah, so basis. Firstly, you can make efficient representation, compression, dimensionality reduction. वो आप कर सकते हैं. कैसे? ये अब मैंने already आपको idea दिया हुआ है. In time domain, this is the process or function or curve. This is how it looks. Yeah, in time domain. कितने सारे points हैं? Real number पे अगर चल रहा है तो ये infinite points चल रहे हैं. But notice its presentation, representation in the right basis. अगर आप कोई और basis choose कर लेते हैं तो हो सकता है वो इतना sparse ना हो. You can represent this whole function with just 3 points. ठीक है, बाकी कहाँ है? वो assumption है हमारी. When we say Fourier transform, we know which basis we are talking about. So we don't need to repeat that. All we need to say is आपको पता है कि e j omega की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें ओमेगा की वैल्यूज़ ये रखते जाएं और e j omega को अल्फ़ा 1 यानी 1 से अल्फ़ा 2.5 से और अल्फ़ा 3.25 से मल्टीप्लाई करें, उनको सम करें और ये आ जाएगा. राइट? सो द कन्वेंशनल द बेसिस कि कौन से बेसिस यूज हो रहे हैं वो किस में होते हैं? नाम में होते हैं. व्हेन आई से दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, आई एम सेइंग my bases are complex sinusoid. When I say it's Laplace transform, I am saying my bases are complex sinusoids but not necessarily pure ones. वो growing and damped भी हो सकते हैं. Fourier सिर्फ pure वालों पे काम करता है. ठीक है, फिर उसकी वजह से कुछ limitations आती हैं Fourier की. We don't need to go into that. Right. Second, analysis, comparison, synthesis of functions of curves becomes easier once you realize what the bases are. For example, these are two different instruments, flute and recorder. बांसुरी type कुछ है ये, right? अब if you plot their इनका जो music है जो play होता है इनसे, if you plot that in time, वो बिल्कुल मिलता जुलता लगेगा आपको. ठीक है, वो कुछ मतलब be like इसका भी कुछ ऐसे ही जा रहा होगा, कुछ समझ नहीं आएगी आपको. या but look at the frequency content. Now we throw it into the Fourier transform. Yeah, बड़ा unique सा इनमें एक फ़र्क है. These are harmonics. This is the fundamental frequencies. फिर इसके harmonics. इसमें fundamental frequency, then a very weak harmonic, then 2 strong harmonics, then no more. This set, this group, and here this group is the distinguishing feature between these two guys. बाकी सब जो है ना वो loudness है, right? इनकी जो अपनी आवाज़ में जो फ़र्क है, इनकी जो म्यूज़िक निकलता है वो mainly इससे है, right? Once you know this, you can give it to a computer, synthesize कर लें. इसलिए तो इतना possible हुआ speech recognition. उससे तो नहीं हुई, हमारे अल्फाज पूरे रिकॉर्ड करने से तो नहीं हुई. Actually जो before machine learning or neural networks, most of speech processing is based on Fourier transform. Right? You take it into Fourier domain. Every syllable के बल्कि वो phoneme कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के भी छोटे छोटे sections होते हैं ना, phonemes, उनका आप Fourier बनाते हैं and you find the common frequencies there and then try to identify. Yeah. So yes, comparison, synthesis, analysis, all of that becomes much easier when you look at your processes, your functions in terms of their bases. Yeah. Then computation become extremely simple. Let's say S is a linear shift invariant operator. Linear operator का पता है, right? Which maintains superposition, right? So क्या होगा linear operator? For example, if I give S a function xt plus b y t, then the output is a s xt plus b s y t. It's like if the input to this operator is a scaled and summed version of two inputs, then it's equivalent, the output will be the same as if you had sent those two guys separately through the system or through the operator and then given them the same scaling and then sum them. This is called superposition. Yeah. So
This is the property of a linear operator. Linear combinations जो है ना वो linear algebra में उनसे जान ही छूटती है. It's kind of looking at a linear combination. यही है ना. तो अच्छा. Now it has associated response function ht. We wish to calculate the effect of this operator on function xt. ठीक है, ये है. क्या होगा yt? क्या होगा? So हाँ वो तो हो गया, ठीक है. और फिर उसका इन दोनों की टर्म्स में x of t plus h of t, right? Now this is the response function of this guy. Yeah, it represents the effect of st. So शायद अभी आपको भूल रहा है, लेकिन बहरहाल we teach this, it's the convolution right of xt and ht को हम impulse response भी कहते हैं, right? So it's the convolution हमने देखी है पहले, right? क्या फॉर्मूला है, right? कहाँ आया था ये? convolutional neural networks, ये वो चीज़ है. Yeah, so now if this is a linear shift invariant operator, बहुत से आपके जो ये जो summation symbol है, आपका ये integral वगैरह, differentiation, they are all linear shift invariant functions in general. Yeah, so you get the output or the effect of this operator as a convolution between the input and the response function of the operator. ठीक है, response function find कैसे करते हैं वो फिर और कहानी शायद आप बताओ in here. Now what if we write xt and ht in terms of Fourier basis? फिर क्या होगा? Yeah, like this, we write xt like this, we write ht like that. So, yeah, so when we write these in Fourier basis, then we stop working with this, we just work with the basis. ये वही एक्स डब्ल्यू जो है ना, ये इसको अगर प्लॉट करेंगे तो ये वही तीन लाइनें नहीं जो पहले नज़र आ रही थी फ्लूट की, और कंटिन्यूस भी होता है कई दफ़ा, लेकिन दिस हाउ इट इज़. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड बिफोर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, अ कॉन्वोल्यूशन. बट व्हेन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, व्हाट्स द आउटपुट? सिंपल प्रोडक्ट, राइट? Something as complicated as a convolution function has now turned into a simple product. Computation becomes extremely simple. So normally the way convolution is done, you flip one of the functions and then you pass the other through it, and at each point you take a snapshot of it. Mathematically आप करते हैं इसका, and the common area defines the convolution function जो भी वो बनता है. Now but when we work with basis, this is what happens. Instead I write xt in its basis. Let's say इसके अंदर 6 frequencies निकलती हैं, ठीक है, थोड़ी सी broad peaks हैं, वो फिर एक लंबी कहानी है. बहरहाल let's say ये 6 frequencies निकलती हैं, and I can take the Fourier of the response function. We call it the transfer function. Okay, that is looking at ht in terms of its Fourier basis. तो लेट्स से ये निकलता है. अब आपको पता है आउटपुट क्या होगा? इसका तो बताना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसका आउटपुट सिंपली प्रोडक्ट है, राइट? सो क्या होगा इन फ्रीक्वेंसी f1 f2 के साथ? क्या होगा? अटेन्यूएट हो जाएंगी, 0.5 से मल्टीप्लाई होना उन्होंने, राइट? सो उनका स्केल नीचे हो जाएगा. f3 f4 के साथ क्या होगा? बल्कि f1 अटेन्यूएट हो जाएगी, f2 f3 विल बी अनचेंज्ड, 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं. f4 f5 विल बी yes enhanced, and f6 will be blocked, ब्लॉक हो जाएगी, या क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है. तो what do you get? This is it, yeah, simple multiplication. So working in bases makes things, और ये हम देखेंगे वेक्टर स्पेस में, this will help us a lot. Okay, so
they can convert one branch of math into another. बड़ी बात है, कैलकुलस मुसीबत है, राइट. अलजब्रा तो 8वीं में समझ आ जाता है यार. लिमिट्स अभी तक हमारे बच्चों को समझ नहीं आ रही, 4 कोर्स हम पढ़ा देते हैं फिर वो परेशान है लिमिट क्या होती है, या क्योंकि उससे शुरू होता है कैलकुलस. तो दे कैन कन्वर्ट कैलकुलस इनटू अलजब्रा. करते हैं आप? कहाँ करते हैं? वो आप डिफरेंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट. डिफरेंस इक्वेशंस आर स्टिल नॉट बेसिक अलजेब्रा क्योंकि वो इटरेटिव सॉल्यूशंस आते हैं उनके. यू कैन इवन मेक देम सिंपलर विद जी ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट में, लेकिन कंटिन्यूस में क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं? कोई एक तरीका याद है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का? कोई तरीका? एनालिटिक में कौन सा यूज़ करते हैं? डी ऑपरेटर यूज़ करते हैं. ओके, सो ये होता है आप पास के y डॉट टी इज इक्वल टू डी वाई टी एंड y डबल डॉट टी इज डी स्क्वायर वाई टी. वो क्या कर रहे होते हैं आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं ठीक है. हाँ, सो using these bases or Laplace or Fourier, you can convert a differential equation into a simple algebraic equation, solve it and convert it back to get your solutions. Okay. So क्या क्या हमने देखा है power of basis में? क्या क्या था? Compression is possible, very अच्छी representation with minimum values, sparsity आ जाती है, compression, good representation is possible. The synthesis, comparison, all those things become easy. Computations become easy. One example of computations becoming easy is converting calculus into algebra. Now I ask people even in sometimes for AP assistant professor positions, I ask them, what's the magic in Laplace that converts one branch of math to another? ठीक है, or it's very hard for many people to respond. So later we will see कि ये कैसे होता है, yeah, but basis ही की मदद से होता है, ठीक है. Right, so these concepts क्या क्या निकले इधर से? Linear independent, subset, right, और क्या निकला? Bases, they formed bases, those bases spanned the whole set. यही terms हैं बस ठीक है, जो key terms हैं. Now we want to bring them to linear algebra. अभी मैंने Fourier series वगैरह या उसकी terms में बात की है just to develop the idea. So let's see. Firstly, let's formally define. We defined linear combinations before, लेकिन चले दोबारा define कर देते हैं. क्या is this? Just scaled and summed versions of members of some set or space. वो हम कई बार discuss कर चुके हैं. I hope by now you are comfortable with this. So linear combination, consider a vector space V and a finite number of vectors. Then every V in V of the form, क्या form होगी उनकी? ये, right? अच्छा, V doesn't have to have finite number of vectors in it, but the linear combination cannot be made with infinite members. ठीक है, ये इसकी एक implicit हमारी assumption, ये कोई वो नहीं है, prove करने वाली बात नहीं. This is how we define, क्योंकि उसके बगैर क्या होगा, हर चीज़ infinity की तरफ जा रही होगी more or less, yeah. So that's why we want linear combinations to be made up of finite number of members of V. But V does not need to have finite members, ठीक है. So मसलन R2 में कोई finite number of vectors तो नहीं है, infinite vectors हैं. But to make linear combinations, you have to pick a finite number of those vectors, multiply them with scalars, sum them up. Yeah, every selection of lambdas leads to a different linear combination, right, of those which you have picked. And then every selection of these these k vectors, x1, x2, forms a different linear combination. वो भी आप choose कर सकते हैं. So let's say we are given vectors 1, 0 and 0, 1. Some of their linear combinations नीचे आपको नज़र आ रहे हैं. V1
समझ आ रही है लीनियर कॉम्बिनेशन या. सो बेसिकली 4 टाइम्स द फर्स्ट वन प्लस 5 टाइम्स द सेकंड वन. ये आई डोंट नो यहाँ कैसे चला गया, इट्स सपोज टू बी हियर. सो in general we can say that we can make all these linear combinations, right, from here. That is the whole R, sorry R2 प्लेन पूरा कवर हो जाता है इससे, सिर्फ इन दो से. तो फिर ये दोनों क्या है, बेसिस हो जाएंगे, और स्टैंडर्ड वो फिर हम देखेंगे. इनमें कोई एक और आप ऐड करें, चले वो हम आते हैं उस पर. वो जो मिनिमम सेट और मैक्सिमम सेट वाली बातें थी ना, वो आगे आ रही है. लीनियर इंडिपेंडेंस, और दिस इज लिंक टू लीनियर कॉम्बिनेशन. जब लीनियर कॉम्बिनेशन बना के कोई एक वैल्यू ना आ सकती हो, तो वो फिर कोई भी यानी अ सेट, लीनियर इंडिपेंडेंस डज नॉट अप्लाई टू वन वैल्यू, और सॉरी इट हैज़ टू बी अ सेट. ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये 6 सेट है, इसमें 6 एलिमेंट हैं कोई, या जिनको मैं देखना चाह रहा हूँ. आई वांट टू लुक एट दिस 6 एलिमेंट्स. Is this set of 6 elements linearly independent or not? Then we will say it is linearly independent if none of the members in there can be made as a linear combo of the rest. Yeah, तो फिर वो पूरा का एज अ होल होता है ये. ठीक है, ये नहीं होता कि मतलब सिर्फ ये अकेला लीनियरली डिपेंडेंट है, राइट. क्योंकि अगर कोई एक लीनियर डिपेंडेंट है ना, फिर दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि आप यू कैन राइट इट द अदर वे. या सो this is the definition which I have already told you. कोई उसमें मसला नहीं है. just see there is a vector space V, you pick K subset ले लिया उसमें से x1 x2 x3 xk. this subset xk is linearly independent if there is only a trivial solution. ठीक है, अगर there is a trivial solution to this, trivial solution क्या है, the only way this is equal to 0 is if all lambdas are 0, which is trivial, anybody can do that. उसके अलावा अगर कोई आपको solution मिल गया, तो ये पूरा ग्रुप जो है आपस में linearly dependent है, क्योंकि then you can just send one of them to the left right, और क्या बना दूसरे, यानी वो जो लेफ्ट पे जाएगा बाकियों का linear combination होगा, ऐसे ही है ना. so अगर इसका लीनियर कॉम्बो का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकल आए, तो देन दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट. अगर सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल हो, दैट मीन्स देयर इज नो वे यू कैन राइट वन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्ट और एनी नंबर ऑफ रेस्ट, देन इट इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो बना हुआ इधर, ठीक है, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. अग्री करते हैं या. सो यू कैन नॉट मेक 1 0 0. इधर आप जो मर्जी जोर लगा लें, दोनों के साथ कुछ भी मल्टीप्लायर लिख दें, या लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर मल्टीप्लायर्स अलाउड है, ऐसा ना मैट्रिक्स से करके उसको 0 1 0 बना के. या सो वट एवर यू मल्टीप्लाई दीज विद एंड ऐड देम, ना करें ऐड, जो मर्जी करें, ये नहीं निकलने लगा आपसे, राइट. दिस गाय जस्टिफाइज हिज प्लेस इन द ग्रुप. ठीक है, सो yes, that is linearly independent set. और ये set कौन सी स्पेस को स्पैन करता है, R3 को. yeah, then what about if I give you this set now? This set is not linearly independent. This set has linear dependence. yeah, क्या है linear dependence? और ज़रूरी नहीं कि एक ही हो किसी सेट में, 6 भी हो सकते हैं जिनकी वजह से linear dependent. यानी अगर एक बेसिस के 3 है ना, जिससे वो पूरी स्पैन हो सकती है, तो कोई भी चौथा डालेंगे ना, वो मतलब उनका लीनियर डिपेंडेंट ही होगा. फिर पांचवा भी होगा, छठा भी होगा, हर कोई एक्स्ट्रा निकलता है. सो येस, 2 3 0 कैन इजीली बी फाउंड बाय, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे यूज़ करने हैं. रिमेंबर, लीनियर कॉम्बो अलाउज यू टू यूज़ एनी नंबर ऑफ लैम्डास, अदर्स कैन बी ज़ीरोज़ बट नॉट ऑल कैन बी ज़ीरोज़. वो अगर डालेंगे तो वैसे ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, राइट. हाउ डू वी चेक लीनियर इंडिपेंडेंस? बहुत से तरीके हैं, मैट्रिक्स से भी होता है, एल्गोरिथमिकली भी है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू अ वेरी क्विक वन. लेट्स से यू वांट टू चेक, अभी तो मैं इजी केस बता रहा था ना 1 0 0 0, तो किसी को भी नज़र आ जाता है, बट दिस वन इज़ द सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट. कोई गैस करना है आपने? अच्छा,
ओके लेट्स सी सोल्यूशन चेक करते हैं. सो इक्विवेलेंटली वी आर आस्किंग, ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, वो चाहिए शॉर्टकट तो हम ट्राई कर सकते हैं, राइट. सो we are asking if this homogeneous equation, now these are the lambdas, right, lambda 1, lambda 2, lambda 3, if this equation has a solution, non trivial solution or not, right. तो ये तो वो homogeneous equation की बनती है. so रो reduced form कल भी मैंने रिमाइंड कराया था, जस्ट गुड टाइम टू रिव्यू वेरी क्विकली. आपने ये नहीं कि उसकी कोई प्रैक्टिस करनी, एक दो बार देख लें. वो रो ऑपरेशंस होते थे ना, एचलॉन फॉर्म, एचलॉन कहते हैं फ्रेंच में सीढ़ियों को ठीक है. तो वो एचलॉन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, सीढ़ी सी बनी होती है ना, नीचे जीरोज होते हैं सारे, ठीक है. सो स्टेप्स बेसिकली. सो इट्स द एचलॉन फॉर्म यू मेक, एंड वंस यू हैव मेड दैट इट्स इजी टू rewrite these as, अगर आप echelon form के बाद जब equation लिखेंगे तो it's easy to see. थर्ड equation तो कुछ नहीं दे रही, सेकेंड equation दे रही है कि y equals minus z, and third one is giving you x equals minus 2z. so that's what you get. so there is a non-trivial solution, निकल आया ना, ये है वो non-trivial solution. We're not saying x is 0, y is 0 and z is 0 is the only solution here. Yeah, we did find a solution, and that will help you see कि ये तो कई दफ़ा multiple, जैसे आपने बताया था 2 से multiply करके, या many ways you can create one of these from the other two. Okay, so this set is not linearly independent. Good to revise row echelon form, Gaussian elimination, Gauss-Jordan elimination. अच्छा रिवाइज कर लें, क्विक सा देख लें उसको. इज दिस सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट? हाँ जी, अब लड़ाई राइट. सो ऑफ कोर्स एग्जांपल में तो आपको कई बार नज़र आ भी जाएगा, लेकिन व्हेन वी हैव बिगर नंबर ऑफ सेट्स और वेक्टर्स दैट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, सो इट्स गुड टू हैव अ प्रोसीजर इन माइंड. सो विल फॉलो द सेम प्रोसीजर, या, एंड वी गेट द रो रिड्यूस्ड फॉर्म. इसका सोल्यूशन, ये इसकी जो फाइनल फॉर्म बनी है, right, diagonal बनी है ये, yeah, and that is only telling you that x equals 0, y equals 0, trivial solution is the only solution there is, then definitely it is linearly independent. okay, अब आप देखें these three are linearly independent. हमने एक और R3 के लिए कौन से देखे थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वो किसने कहा था, स्टैंडर्ड बेसिस, because they are not the only basis. ये भी हैं, आप उन तीनों को फेंक दें, इन तीनों से आप पूरा R3 बना सकते हैं राइट. और हम आगे देखेंगे कि एक्चुअली इन मैनी केसेस these three will be much more useful guys, जो हमने रटा लगाया जिनका, ठीक है. so let's apply some of what we saw on the real number line. yeah, मेरी स्लाइड नंबर उसके नीचे छुपा हुआ है, गैस करना कौन सा है, 150 लिखा हुआ है यही होगा राइट. सो रियल लाइन, या रियल नंबर लाइन पता है आपको, सबको पता है. we want, basically I am claiming that the real number line is a subspace of Rn. Yeah, to be a subspace of something, that whole big thing should be a space. Rn space है तो चलिए वेक्टर स्पेस है ना, वो सारी एक्सियम्स जो है ना आपके वो आराम से सेटिस्फाई करती है. उसके अंदर रियल नंबर लाइन इज़ ए सब स्पेस. क्यों, हमने कौन सी एग्जांपल्स देखी थी, लाइन की कौन सी लाइंस थी जो नहीं थी सब स्पेस, ज़ीरो नहीं था जिनमें, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट मिसिंग था. इसमें तो होता है, नंबर लाइन जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो तो ज़ीरो से ही शुरू करते हैं ना, लेफ्ट राइट. सो लेट्स लुक एट दिस. Each vector on this line can be represented as this thing. Yeah, you could even write a third zero अगर आपने वो Rn R3 दिखाना है, लेकिन असल में ये सिर्फ दो एक से ही हो जाता है. yeah, but just to keep it, अगर मैं सिर्फ x लिखूँ तो वो वेक्टर की फीलिंग नहीं आती इसलिए ये लिख दिया, ठीक है. so of course the other one element zero रख दिया, आप जो मर्जी मल्टीप्लाई करते फिर उधर कुछ नहीं होने लगा. yeah, so ये रियल नंबर लाइन ही रहेगी, राइट.
how many linearly independent vectors do we need to form all the vectors in this one? कितने चाहिए? एक, right? क्या है वो? 2 0 भी हो सकता है ना, 5 0 भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड 1 0 है, but each one of them is a candidate, yeah, but yeah, the standard one is 1 0. We need only one vector to represent this whole set of this whole subspace. एक वेक्टर से represent हो सकती है. That can be 1 0, that can be 5 0, कोई भी ले लें आप, लेकिन एक लेना है, ठीक है. दूसरा ऐड करेंगे तो हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है. और ये भी ड्रॉप कर देंगे तो represent नहीं कर पाएंगे. तो ये मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है, ठीक है. So I already said that this is no, it's not unique. Yeah, it's simply scaled versions. All of them qualify fine. They also span the entire number line. कोई मसला नहीं है, ठीक है. Right. जी, इसका क्या जवाब है? आई गेस क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है मेरा, ना अलग तो चूज़ कर सकते हैं बट टुगेदर नहीं कर सकते, राइट. सो क्वेश्चन शुड बी कुड वी चूज़ दीज टुगेदर कंबाइंड, तो वो तो नहीं आप कर सकते, राइट. तो व्हाट विल यू बी वायलेटिंग? ये हाँ लीनियर इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी. सो डेफिनेटली नॉट. दिस इज इंटरेस्टिंग. So although the bases are not unique, but their number is fixed. ये बड़ा important है और इसका एक नाम भी आएगा, dimension कहते हैं हम इसको. वेक्टर स्पेस या सब स्पेस की डायमेंशन होती है वो, कि उसको कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स चाहिए. और ये देखने अगर 1 0 से वो हो जाता है तो फिर 5 0 से भी होगा, लेकिन 2 से नहीं होगा. वेक्टर एक को एक ही रिप्लेस, 3 से हो रहा है तो 3 ही से होगा, ठीक है. तो ये उसकी बड़ी यूनिक चीज़ है. Yes, and we call it dimension of the space. Okay, ये मैं वो terms आपकी develop कर रहा हूँ जो हमने आगे सारी use करनी है. An interesting case, इसमें क्या हुआ है? फिगर से नजर आ रहा है क्या किया मैंने? हम जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, हम सब के जहन में एक ज़ीरो ओरिजिन है, यूनिवर्सल कोई ओरिजिन हमने सोचा हुआ है, या बस ज़रूरी नहीं कि वो हो, मौजूद हो, नहीं हो, क्या है, राइट. सो वी ऑलवेज ड्रॉ आवर वेक्टर्स फ्रॉम ज़ीरो, राइट, बट वी कुड ड्रॉ देम फ्रॉम 4, ऑल ऑफ देम. What if we want to represent a special set of vectors that all start at 4 0? Okay, so in fact we do come across such situations. आगे हम देखेंगे, ये आएगा काफ़ी डिटेल में. और they are just the translated, translation क्या होती है? वो एक तो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन होती है ना, आप मैकेनिक्स वगैरह में मूवमेंट या ट्रांसलेशन, या सो ट्रांसलेशन ऑफ द सबस्पेस R. हाउ इज़ दैट? देखें, सबस्पेस R थी, x0 x in R थी ना, ऐसे ही था वो, या. नाउ what is happening in each of these vectors? They are translated by a value of 4, ऐसे ही है. So this is the subspace. Is this new thing a subspace or not of Rn? It is. यानी अगर हर वेक्टर 4 से शुरू कर रहे हैं हम, तो it is still a subspace. 0 एलिमेंट है, होगा अंदर, है नहीं दोनों तरफ जा रहे है ना, क्योंकि x को -4 रखेंगे तो 4 - 4 0 0, you still have the 0 element in there, बाकी conditions भी meet हो जाएंगी. So later we will define this special translated variant of a space as affine subspace, ठीक है. So we will define that. Affinity क्या होता है? हाँ, ठीक है, अट्रैक्ट, कुर्बत या फ्रेंडशिप. और अफाइन को लीगल टर्म्स में
ससुराल भी कहते हैं, इन लॉज नहीं, असल में अफाइन रिलेशन होता है, इन लॉज को कहते हैं, राइट, somebody connected to you. So why is this what is this connected to? Basically this space is connected to our original subspace which was this x0. ये उसका translated version है, it's connected to the original one through a translation vector, right? तो बाकी सारी की सारी वही है, so it is bordering, it is connected to that, yeah. So ये affine subspace, but bracket में क्या लिखा हुआ है? The affine versions will not always qualify as, अभी तो कर रहा था आपने उदित बताया, कब नहीं करेगा इसमें, कुछ मैं ऐसा करूं कि ये अफाइन तो होगा पर सब स्पेस नहीं रहेगी. अच्छा, इंटरेस्टिंगली मिसनॉमर है, मिसनॉमर होता है किसी चीज़ का गलत नाम पढ़ जाना, ठीक है, ऑपोजिट यानी, या सो वी विल स्टिल कॉल दैट अफाइन सब स्पेस. वो जो सब स्पेस नहीं होगा ना उसको भी अफाइन सब स्पेस कहा करेंगे हम, लेकिन वो होगा नहीं, ये तो था. तो एन अफाइन सब स्पेस कैन बी अ सब स्पेस और नॉट, फॉर्मुलेशन उसकी ऐसी ही होती है. तो क्या करूँ मैं इसके साथ कि ये उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी हो और अफाइन सब स्पेस की डेफिनेशन भी फेल हो जाए, क्या करें? नहीं, ट्रांसलेटेड वर्जन है तो फिर मैं किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता, फिर तो -1 का फार्मूला पाकिस्तान में तो नहीं चलता. ट्राई होता रहता है. फिर हमारा ह्यूमंस का ना ये इशू है कि हम जिन डायमेंशंस में होते हैं ना हम वहीं रहते हैं, राइट. यानी आप या हम सारे इसको देख रहे हैं, वी आर जस्ट स्टिकिंग टू दिस डायमेंशन. ऐसा ही है ना, एक कदम ऊपर रख लें. किसी ने मना किया है, राइट. What if I translate them upwards? Yeah. So now अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये भी अफाइन है क्योंकि इट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स. क्या है? ओरिजिनल सब स्पेस इज देयर एंड समथिंग हैज़ बीन एडेड टू इट. या नाउ इज दिस अ सब स्पेस और नॉट? नहीं है, जीरो शामिल नहीं है ना अब इसके अंदर, so it doesn't qualify as a subspace. We will still call it an affine subspace, but keep in mind that an affine subspace, although it is the translated version again, this was your original subspace and you added a translation vector to it, ठीक है. तो वो that forms an affine subspace, but the name may be confusing because it will not always be a subspace. कुछ केसेस में होगा, कुछ में नहीं होगा. इस एग्जाम्पल से आप कोई जनरल प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, किन प्रिंसिपल में होगा, किस में नहीं होगा. इधर थी अफाइन है और सबस्पेस भी है, उधर अफाइन है पर सबस्पेस नहीं रही, क्या फ़र्क है? नेक्स्ट स्लाइड लिखा हुआ, वही तो मैं छुपा रहा हूँ. मैं नीचे लिखा हुआ डायमेंशन, उससे अलग डायमेंशन. तो कैन वी से कि अगर ट्रांसलेशन वेक्टर डज नॉट फॉल इन द ओरिजिनल सबस्पेस, राइट. देखना यहाँ जो ट्रांसलेशन वेक्टर है 40, दैट इज मेंबर ऑफ द ओरिजिनल सबस्पेस, आर का मेंबर है ना, राइट. लेकिन इधर देखें जो मैंने ट्रांसलेशन जो इसे किया है, ये जो ऊपर को गया है 0 1, इट्स नॉट अ मेंबर, राइट. सो इन दैट केस you will not get a subspace, okay. So you will get an affine version of your subspace but it won't be affine. So yes, वो जो आप अगली स्लाइड में देखना चाह रहे थे, yeah, translation vector from outside the original subspace, ठीक है. So span of a set, what's that? Basically take a set, उसके तमाम जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बना लें, दैट विल बी स्पैन.
So the span of 0 1 and 1 0 is what? Whole R2, right? Plane. Yes. So like that you can make the सारे लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है. इसके अंदर जो फाइनाइट वाली बात है ना, वो कहाँ है इस डेफिनेशन में? n belongs to राइट, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, या नॉर्मली भी क्या, वो बच्चों को हम होल नंबर अलग पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे हम 0 1 2 उस तरह, लेकिन है n नेचुरल नंबर है तो इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता इसके अंदर, राइट. सो इट्स हिडन इन देयर इन द डेफिनेशन. या ओके. सो this the span of this set is the whole R3. Yes. Spans can be different kinds of planes. ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका स्पैन, ये जो प्लेन ऑफ कोर्स इट विल कंटिन्यू इन्फिनिट होगा ये, राइट, लेकिन इस शेप का हो सकता है. जनरेटिंग सेट क्या होता है? The set of vectors that spans a given vector space. अभी स्पैन पढ़ा है, ठीक है. अब वो जो वेक्टर्स हैं जिन्होंने स्पैन करना है वो होगा जनरेटिंग सेट. तो बेसिस में क्या फ़र्क है? हाँ ठीक है. तो फिर बेसिस क्या है? इंडिपेंडेंट. दिस गाय मे कंटेन रिडंडेंसीज. इसमें हमने नहीं कहा हुआ कि मिनिमम सेट चाहिए. तो फिर बेसिस क्या होती हैं? मिनिमम जनरेटिंग सेट. सही है. जनरेटिंग सेट कैन हैव रिडंडेंसीज. जनरेटिंग सेट की डेफिनेशन बस ये है कि गिव मी अ सेट ऑफ वेक्टर्स दैट कैन स्पैन द होल वेक्टर स्पेस. It doesn't say they should be linearly independent. Doesn't say you should give me a minimum set. Yeah. So then we already know now that a basis is a minimum generating set, and a basis is the maximum linearly independent set. Minimum maximum फिर आ रहे, ठीक है. So क्योंकि बेसिस में मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्यों होता है? यूं ही एक और डालेंगे लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगी, ठीक है. तो अब आ गया फाइनली जो हमने डिफाइन करना है, या वो सारी चीज़ें इस तरफ बिल्ड कर रही हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंस, जनरेटिंग सेट, स्पैन, ये सारे मिल के अब इधर आ रहे हैं बेसिस की तरफ. या सो द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट स्पैन्स अ गिवन वेक्टर स्पेस. दिस इज द डेफिनेशन. यू हैव अ वेक्टर स्पेस and a generating set which is a subset of this vector space is called minimal if there exists no smaller set that spans V. वही बात है, अगर वो उससे आप कोई छोटा, उससे आप कोई निकालेंगे एलिमेंट तो V का स्पैन पूरा नहीं होगा. कोई ना कोई मेंबर्स इन दी होल बिगर स्पेस विल बी मिसिंग. उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, राइट. सो बेसिकली देन basis is a minimum generating set or the maximum linearly independent set. क्योंकि आप होता है मेरे बेसिस पूरा स्पैन करने के लिए 6 चाहिए हो, आप मुझे 4 दे के कहें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मैं कहूँ हाँ आपने मिल गई सारी, लेकिन असल में तो 6 चाहिए, तो ये मैक्सिमम नहीं दिया आपने मुझे. सही है. सो द मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और द मिनिमम जनरेटिंग सेट, ये दोनों जो भी कंडीशन आप दिखाना चाहें, once you prove it you have the basis. So yeah, वही बात दोबारा आ गई. So for example here they are both generating sets for R3, right. क्योंकि जनरेटिंग सेट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो मिनिमम होना चाहिए, but the minimal one is of course S1 and it is necessarily linearly independent. ठीक है. जो ही आप मिनिमल से ऊपर जाएंगे लीनियर डिपेंडेंस शुरू हो जाएगी, ठीक. So vector space are not unique. Yes, of course. This also spans R3. ठीक है. ये तो easy case है. और भी 1 -1 1 and -1 1 इस तरह के भी कई बन सकते हैं. Not just with zeros, many others. Yeah. So, but in each case, it can be only 3. For R3, can be only 3 क्योंकि minimum generating set unique ही होता है in its size. Yeah. So, dimension फिर क्या है? The dimension of the space is the number of vectors in a basis. Minimum generating set
या मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के अंदर जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, जो बेसिस हैं, कितनी बेसिस हैं उतनी उसकी डायमेंशन है स्पेस की, ठीक है। हम किस में रहते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, उससे बाहर हमें कुछ समझ नहीं आता है, राइट। सो इसकी ये पूरी स्पेस जो है 3 वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है। सो या दिस इज़ द डायमेंशन। R3 की डायमेंशन जो है वो इज़ 3, कैन स्पैन द होल थिंग। Now whatever we discussed so far, we first applied on real number line. Now let's apply it on this plane through the origin R square, which is a subspace of Rn. वो हम पहले भी देख चुके हैं, as long as this plane is through the origin, इस plane का एंगल वेरी मैटर नहीं करता, राइट। हम वैसे स्टैंडर्ड ड्रॉ करें तो हम वो सीधा वाला ही बना रहे हैं फिलहाल। 0 से गुजरना ज़रूरी है और इन्फिनिट होना ज़रूरी है। इन्फिनिट नहीं होगा, साइज़ में कहीं आप उसको रोक देंगे तो स्केल्ड वर्जन्स फिर क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होना शुरू हो जाएगी। ईच वेक्टर ऑन दिस प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड, agreed? Yes? So how many do we need? 2, right? It could be these 2, but कोई और भी हो सकते हैं, as long as they are linearly independent. What is the size of the minimum generating set of R square? 2, right? What is the dimension of this subspace? 2. सारे जवाब वो आ जाके यही निकलते हैं। Dimension is the size of minimal generating set. Are these unique? No. कई निकल सकते हैं लेकिन होंगे हमेशा 2 ही, क्योंकि उसकी डायमेंशन 2 है बस, ठीक है। So that's interesting. If I have this basis, you have another set of bases. Can we switch between them? How do these vectors look if I change the basis? Yeah. So for example, someone else says I don't want 0 1 and 1 0. I want -half and 1 and half 1 and half. ये भी तो basis हैं, आप चेक कर सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो द सेम वेक्टर विल रीड डिफरेंट, राइट, क्योंकि जब आप वेक्टर को 2 2 लिखते हैं, ये क्या लिख रहे होते हैं आप जब ये लिखते हैं इस वेक्टर को 2 2? इसकी प्रोजेक्शन लिख रहे होते हैं। पहला 2 बता रहा है कि प्रोजेक्शन ऑन दी फर्स्ट वेक्टर, दूसरा 2 बता रहा है प्रोजेक्शन ऑन दी सेकंड वेक्टर। बेसिकली यू आर थ्रोइंग लाइट, टॉर्च आपके हाथ में है, यू आर थ्रोइंग लाइट ऑन इट पैरेलल टू दिस वन, या पैरेलल टू दिस वन लाइट थ्रो कर रहे हैं आप, ताकि जो पार्ट आता है उसका रिफ्लेक्शन में जो शेडो बनेगा वो होगा, या। पर अब दैट डजंट होल्ड एनी मोर। अब अभी भी अगर आप ऐसे लाइट थ्रो करेंगे तो बेसिस तो वो नहीं है आपके, राइट। अब आपने कैसे लाइट थ्रो करनी है, एक इसके पैरेलल, राइट, और एक थ्रो करनी है इसके पैरेलल। अब जो प्रोजेक्शन, अब इसके पैरेलल आप लाइट थ्रो करेंगे, जो बनेगी और जो यहाँ बनेगी वो लिखेंगे आप, राइट। सो वन वेक्टर में लुक और have different coordinates or values in a different basis. हम जब लिखते हैं तो we are always assuming 1 0 0 1 जो आपने भी कहा standard basis वो हैं, but in most of our problems standard bases are not the best bases. Okay, there will be bases which will reduce the dimension of the problem, okay, which will be better for us. तो वो हम देखेंगे आगे। Yeah, that's change of basis is a whole topic. Next lecture में वो आएगा इंशाल्लाह। कार्टेशियन प्लेन हम देख रहे थे, ये फिर वही सवाल है फाइन वाला। Yeah, can we look at set of vectors in R square that start at a point other than origin? Yeah, so a fine subspace बनाएंगे हम। Yeah, if we pick this translation vector inside the plane, so it will still be a subspace, right? If we pick it outside, third dimension में चलेगा, तो फिर it will not be a subspace because then origin is missing. So again, but the formula is the same. This was the original subspace, yeah, and you added a translation vector to it. If the translation vector is inside the original subspace, then
the affine subspace will be a subspace. If it's from outside, then the affine subspace will be not. क्योंकि देखिए ट्रांसलेशन है, अगर उससे बाहर से लेंगे वो नेसेसरीली आपको उठा के, ट्रांसलेशन है ये, रोटेशन वगैरह नहीं है, नेसेसरीली ज़ीरो से भी निकल जाएगा, हमेशा निकल जाएगा, राइट. सो इट विल बी कॉल्ड द फाइन सबस्पेस बट इट विल नॉट बी. अच्छा, इसको हम लीनियर मैनीफोल्ड भी कहते हैं. मैनीफोल्ड का जिक्र आया था पहले, वो पावर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हमने देखी, ब्रीफली जिक्र आया था. या सो बेसिकली अफाइन सबस्पेसेस आर आल्सो कॉल्ड लीनियर मैनीफोल्ड. या मैनीफोल्ड वैसे होता क्या है? राइट, बस और करीब पहुंच रहे हैं, एक और कंडीशन है. राइट, करीब पहुंच रहे हैं. सो दीज आर नॉर्मली स्पेसेस नॉन यूक्लिडियन बट जो लोकली यूक्लिडियन लगती हैं, राइट. सो बेसिकली इट्स लाइक सेइंग कि आपके पास कोई शेप है, लेकिन जहाँ आप उनको थोड़ा थोड़ा लोकली देखेंगे तो वो यू कैन रिप्रेजेंट देम बाय यूक्लिडियन स्पेसेस. या so this is a linear manifold of the original space. Right, so some useful results on generating sets span linear independence and basis. ये कुछ results हैं which it's good to know those results. Vectors forming a wide matrix. Wide matrix होता है, एक tall matrix होता है, एक square matrix होता है, या are linearly dependent. बड़ी strong statement है ये, right? ये कह रही है कि if you are forming a wide matrix, yeah, and we are assuming wide आपने zeros डाल के नहीं बनाया हुआ, ठीक है, वो तो फिर उड़ाया जा सकता है ना उसमें से. So, for example, if you have this set of vectors, is this linearly independent? You can immediately say that no, okay, because this will form a wide vector matrix, and one of them has to be. So that's one result. You can look for proofs of this. It's not too hard. आपको मिल जाएंगे आपकी books में भी, और basic books in linear algebra will also give you those. Two vectors are linearly dependent if and only if they are collinear. Okay, two vectors का linear dependent मतलब ये है कि if you give me a set that has only two vectors in it and ask me is this set linearly independent, ठीक है, उस सूरत में the only way they are linearly dependent if they are collinear. collinear पता है, हाँ, एक ही लाइन में, यानी एक जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो. इसका मतलब क्या है, आप मुझे एक वेक्टर दें और एक और वेक्टर दें, थोड़ा सा भी उसको हिला दें, सिर्फ ये दो का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट. हमें आदत हुई है ना इसकी ऑर्थोगोनल वाले की, 90 डिग्री की है, बट दीज टू आर ऑल्सो लीनियरली, अगर सिर्फ इन दो की बात हो रही, ठीक है, बिकॉज वो हम देखेंगे क्यों ऐसा क्यों है. एनी सेट कंटेनिंग द जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट. आप मुझे एक सेट दें, ठीक है, दैट ये हम बात कर रहे हैं जीरो वेक्टर ओनली की बात कर रहे हैं, यानी आपको मैं देता हूँ जीरो वेक्टर, इज दिस लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट. या सो we will look at that. If a subset is linearly dependent, then the bigger set is linearly dependent as well. I think that's easy to बर्दाश्त करना आसान है. जो ज़ीरो वेक्टर वाली बात हो रही है, आई थिंक ये बात है कि सेट के अंदर ज़ीरो वेक्टर है ना, नॉट जस्ट वन वेक्टर. So you gave me a set of vectors and one of them was a zero vector. Then it is definitely linearly dependent because I can always क्या करूँगा मैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकाल लूँगा. कैसे, उस ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और बाकी सबको 0 से कर दूँगा, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, राइट. सो इफ़ यू गिव मी अ सेट ऑफ वेक्टर्स और उनमें से एक ज़ीरो वेक्टर है, then that set, उस ज़ीरो की वजह से that set is linearly डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता वो.
no such result for tall matrices. So they can be linearly independent and not. ये सिर्फ wide matrices के लिए ये result है. अच्छा, a set of vectors is linearly dependent if and only if at least one of the vectors in the span is in the span of others. Agreed? मतलब ये एक ही बात को घुमा के कर रहे हैं ना. Linear dependence क्या होती है कि one of them, at least one of them can be formed as the linear combination of the others. That means it's in the span of the others. सिर्फ अल्फाज का घुमाव फेरा और कुछ नहीं. ठीक है. So yes, span is all linear combination, so the theorem should naturally hold. कोई इसमें मसले की बात नहीं. So for example here 2 0 is the span, is in the span of the other two, or you could say 1 0 is the in the span of the other two, right? कोई वो fix नहीं है. ये इंटरेस्टिंग क्राइटेरियन है. इंक्रीजिंग स्पैन क्राइटेरियन बड़ा मज़े का है. ये इस उसका जो जवाब था ना कि दो नॉन को लीनियर वेक्टर्स हैं. अच्छा हाँ ठीक है कोई नहीं. राइट. So if you give me a set of vectors, yes, let's say these are linearly independent, I mean you give me a set of vectors. I take one vector, yeah, it gives me some span. ठीक है. I take another vector, उन दो को जब मैं देखूं तो the span should increase. ठीक है. Then I add the third one, उन तीन को देखूं तो span और बढ़ जाए. समझ आ रही है? यकीन सिंपल है, लॉजिकल है या. So ये iteratively you can check. How is that? Non is always linearly independent. For example here, let's say V अकेला है, इसका span क्या है? This line, या zero origin से गुजर रहे हैं. या W का span क्या है? दूसरी line. अकेले उनका span कुछ और है, बट अब ये दोनों को इकट्ठा देखूंगा तो पूरा plane बन गया वो, right? So the span has increased. Yeah, that means they are linearly. वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि टू नॉन को लीनियर वेक्टर्स अगर सिर्फ वो दो ही हों तो दैट सेट इज़ ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट. बट वी कैन अप्लाई दिस जनरली टू. अब इससे क्या पता चलता है स्पैनिंग इंक्रीजिंग स्पैन क्राइटेरियन से कि अब इस प्लेन के अंदर कोई भी आप मुझे वेक्टर दे दें, राइट, दैट विल नॉट इंक्रीज द स्पैन. प्लेन ही रहेगा. अब कहाँ जाना पड़ेगा? थोड़ा उठाना पड़ेगा या थर्ड डायमेंशन में जाना पड़ेगा. जो ही थोड़ा सा भी जाएंगे थर्ड डायमेंशन में स्पैन इंक्रीज हो गया. यू गॉट 3D स्पेस नाउ. या so mathematically if V is a vector space and B is a subset of V and B is not 0, then these statements are equivalent. If you say B is a basis of V, then B is necessarily the minimal. अब ये वो जो मैं सारा आपको बता दिया ना, इसको समराइज कर रहे हैं हम बस मैथमेटिकली. B is the maximal minimal भी है और maximal भी है. And every vector X is a linear combination. जाहिर है क्योंकि Y तभी तो वो बेसिस होती हैं कि they span the whole set. ये आखिरी स्टेटमेंट ये है बेसिकली, राइट. सो yeah, that I've already explained. Now why the obsession with vector basis? Just few more slides and then we added. So ये पता है वो कौन है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखी किसी ने? यार आप किस दौर के? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पुरानी वाली, अभी जो आजकल तो नहीं चल रही. अच्छा, ओरिजिनल, राइट. सो एनीवे दे आर द रिंग्स. Let's say why are we obsessed with vector basis? All the discussion we saw for power of basis, याद है वो फोरियर की जो हम क्या क्या था उसमें? Compression, dimensionality reduction, efficient representation, efficient computation, easier synthesis and comparison analysis, वो सब कुछ वेक्टर सब स्पेस में भी उसी तरह अप्लाई होता है. ठीक है, जैसे वो उधर होता था. दिस विल बिकम क्लियरर जब हम अगला जो हमारा एक दो चैप्टर छोड़ के आएगा, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, उसमें हम आइगन वेक्टर्स जो विच इज़ लाइक द स्टार ऑफ बेसिस, राइट. स्टैंडर्ड बेसिस आर नॉट लीनियर अलजेब्रा में हमारे किसी खास काम की नहीं है.
इट्स द वेक्टर आइगन वेक्टर बेसिस जो हमें चाहिए होती है, और क्यों चाहिए होती है वी विल सी दैट, या बट जस्ट अ क्विक ट्रेलर ऑफ दिस द पावर ऑफ बेसिस. इसकी 100th पावर निकाल के दिखाएं, करें शाबाश. सादा से नंबर है 3 1 2, कोई मसला तो नहीं है. वन का क्या करना है? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. तो वन ने होना तो है ना, बार बार मल्टीप्लाई होके ऐड होना है ना. सो इट विल लीड टू 100 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, नॉट सो मच फन बिकॉज वी आर लुकिंग एट दिस मैट्रिक्स. इसमें दो वेक्टर है ना, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम. पहला कॉलम ग्रीन है, दूसरा रेड है. सो यू आर एक्चुअली लुकिंग एट दोज वेक्टर्स. Yeah, when we write these values we are normally looking at standard basis. Yeah, so you have this thing. What if I could find another basis? याद है हमने पीछे बात की थी, सेम वेक्टर था और उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे डिफरेंट थे डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ बेसिस. सो व्हाई कांट आई रोटेट माय बेसिस? हम देखेंगे व्हेन इज इट पॉसिबल, बट इफ इट इज पॉसिबल व्हाई डोंट आई चेंज माय बेसिस, रोटेट देम, सो दैट जो मेरा ये वेक्टर मैट्रिक्स A है इसके दोनों वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन डायगोनल हो जाए. या लेट्स सी, कैन आई डू दैट? सो आई एम नॉट शोइंग यू हाउ टू फाइंड दिस येट. वो जब हम आइगन वेक्टर्स में आएंगे तो आपको समझ आ रही है. अभी लेट्स से दीज आर द टू. इंस्टेड ऑफ दोज टू यू कैन चेक दैट दीज आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड दे कैन फॉर्म बेसिस. डायमेंशन भी ठीक है, 2 ही अलाउड होती है इसमें. सो दीज आर ऑल्सो. Now effectively what these are doing, 1 0 minus 1 1 is doing this. It is effectively आपके उसको ग्रिड को, उसने हमें ग्रिड की आदत हुई है इसकी, या उसने आपके ग्रिड को ऐसे कर दिया. देखिए एक को नहीं छेड़ा ना, दो है ना, 1 0 वही रखा है पर minus 1 1 कर दिया. या minus 1 1 is actually now the coordinates of the new grid y projected onto the old grid. ठीक है, वो बाद में देखेंगे basis change. But we have shifted the grid. Is there a procedure to carry out this change of basis? Yes, there is. We will look at that later. अभी सिर्फ मैं आपको उसकी summary दिखा रहा हूँ. This is what happens. There is a way to if these vectors exist, they won't always exist. If their inverse exists, it won't always exist. But if it does, it is very dumb to try to take a to the 100 without doing this. Okay? पहले ये कर लें, देखें वो क्या बन गया. उस बेसिस में इसकी क्या वैल्यू बनती है, 3002. अब वो कर लें जो आप करना. अब इसकी पावर क्या है, 100th. राइट, उसकी पावर आ जाएगी 3 to 100 and 2 to 100. So we call that transform A transform equals A diagonal. A diagonal you can get, उल्टा भी कर सकते हैं, दोनों साइडों को T से मल्टीप्लाई करें फिर T इनवर्स से मल्टीप्लाई, राइट पे you get this thing. A 100 is this thing. ये क्यों नहीं 100 हो रहे? इनका दिल नहीं चाह. आप अभी तक ना एलिमेंट वाइज पावर्स कर रहे हैं, उस तरह नहीं होती है. पावर का मतलब मैट्रिक्स ने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना है, राइट. सो 1 1 होने से नहीं काम बनेगा. राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज a square. A square is a into a, agreed? Let's write a into a here. Yeah, so a is T inverse AD T and the other a is T inverse AD T. ये तो गए. You're back to T inverse AD T, right? And basically ये AD square हो गया. So T inverse AD square T, and because AD is diagonal you just need to make this square. अब जब दोबारा करेंगे क्यूब होगा, same will apply. It's this inverse and the T, ये जो इसका structure है ना, this is forcing the inverse to make the
T and T inverse disappear in the middle. Yeah, so you get this 300 and 200. Now imagine if you had a huge matrix and आप ये तो छोटे 2 by 2 को भी 100th power लेना बहुत मुश्किल है. Yeah, but with the power of basis, now the question is it always possible to do this? How can we carry out this change? All of this will come when we go to eigenvectors. I won't start this now, but I just want to give you an idea. This is the main topic of our next lecture. Yeah, last topic in the first linear algebra section. Yeah, which is transformations, changing one vector space to possibly another. ये और हम कहाँ करते हैं? Functions में करते हैं. f(x) equals y, right? एक कोई सेट है, उसको उसके मेंबर्स को दूसरे सेट पे कन्वर्ट करते हैं या मैप करते हैं. So we already saw one transformation. What we did just now was transforming A into a diagonal A. Yeah. Now in practice we need to do these kinds of transformations often. I have a vector space. I want to apply a function or a transformation to it. Is the transformed version also a vector space? I don't know. We'll have to see. There are actually many questions we would like to ask. Is the output also a vector space? Is the transformation invertible? Functions में भी यही देखते हैं ना, f inverse exist करता है कि नहीं करता. How does this transformation now, वो जो हमने इतनी मेहनत से निकाले थे, bases और dimension, generating set, how do they change when I apply the transformation? Yeah. Is the transformation version more beneficial? इधर तो था going from A to A diagonal हमारे प्रॉब्लम के लिए बड़ा यूजफुल हो गया था, राइट. सो यू वांट दोज ट्रांसफॉर्मेशंस जो या तो सिस्टम नेचुरली अप्लाई कर रहा है तो आपको स्टडी करनी है, या आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप तब करेंगे जब वो बेनिफिशियल हों, राइट. सो अगेन दिस गाय इज हियर टू वार्न अस that you cannot go directly into vector space transformations. So we will see that next time, what to do with that. Yeah. So any questions so far? I'll close this.